یزید نے نہ تیل لایا کہ میں امام حسین نو شہید ہی کرا چھڑیا، دیکھ لو سر تن سے جدا کر دیا، نیزے تے چڑھ کے امام حسین پھر بول پے، او یزید پھر سر پھڑ کے بہ گیا، انہیں آخیا جو آیا اسی اتنا کچھ کیتا، حسین پھر بولدا پیا تو جو ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین بولو بھائی، اینج نہیں، سواد نہیں آ رہا، سنیو ہاتھ چاک کے بولو۔ ہاں ہاں حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کو سمجھ آئی ہے سجنانوں کے کوئی نہیں آئی؟ اس بات کو سمجھا کریں آپ حضرات، یہ حجر اسود ہے اور اس کو دور سے استلام جائز ہے۔ میں کہ کمال علی گل ہے، ایڈی دور پتھر نو سلام جائز ہے تے حضور نو جاندی کرو یار، اس واسطے گلاں سمجھیا کرو چھوٹیاں چھوٹیاں۔ پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلاموں، جی ادھر بھی سجنوں میری واری ہے، میری واری ہے، بڑی دوروں آیا میں، سبحان اللہ تے فرماؤ نہ سونے ہو۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دیوانوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب طواف فرماتے نا، توجہ کرنا میری طرف، طواف ہوتا، طواف کے پہلے چکروں کے اندر آپ 3 چکروں میں رمل فرمایا کرتے تھے، رمل اینج جناب، اینو ہن میں وہ لفظ نہیں بولدا، ہن تو لفظاں تے ہی بڑی پکڑ ہوندی پئی ہے، چونکہ پنجابی دا لفظ ہوندا تو کہندے نے ہن عربی چوں کڈ کے بخا، ہن میں تینوں کتھوں کڈ کے بخاواں، کتاباں 'چ ہر شے ہوندی ہے تے لوکی جناب علی ڈانڈ چک لیندے نے۔ خیر، میرا رب ہے وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، سمجھ آئی نا؟ بظاہر وہ رمل کرتے، ہن میں رمل دا ترجمہ پھر لوگ کرے کہڑا بھاری ہے کتنے لکھیا، ہن بندہ جاوے کہڑے پاسے؟ بس چلو اے تھوڑا جا شاہ صاحب، میں شاہ صاحب نو کو مہینہ نال رکھنا بھی مینوں لفظ دسی رکھیا کرو، حدیث بھی ہے، مفہوم بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ ایک نا جیسے کہتے ہیں کہ پورے وقار کے ساتھ، شان کے ساتھ، اور جنہیں کہتے ہیں دشمناں دے سامنے ذرا سینہ کٹ کے ٹرنا جناب ہے، پتہ لگے کہ حضور دے غلام آج کعبے دے وچ آئے نے، کوئی یہ نہ سمجھے کمزور ہو گیا یا غریب ہو گیا، اور جنہاں دا صحیح مدینے والا ہوے کدی غریب ہو ہی نہیں نہ سکدے۔ اے اصل رولا ہوندا جناب، اے اصل مسئلہ ہے، جے تانوں سمجھ آئی تے سبحان اللہ ایک باری پھر آکھو۔ دوستان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرمانے کے بعد میرے کریم تشریف لاتے تھے زمزم شریف پینے کے لیے، تھکے تھے کوئی نہیں ہو، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب زمزم شریف کے پاس آئے نا تو آپ نے فرمایا یہ جو زمزم کا پانی ہے دنیا پر جتنے پانی ہے سب سے افضل پانی زمزم کا پانی ہے، اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ اس کے اندر اللہ نے بیماریوں سے شفا رکھی ہوئی ہے، بیماریوں سے۔ تو مجھے پھر ایک چھوٹی سی بات کہنے دو، میں نے کہا یہ میرے کریم نے فرمایا؟ کہا بالکل۔ تو میں نے کہا یہ کنواں آیا کہاں سے، بنا کیسے تھا؟ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایڑی مبارک رگڑی، وہاں سے نکل آیا۔ تو میں نے کہا جو یہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے کنواں نکلے وہ اس کے اندر تو شفا ہے، وہ مدینے کے راستے میں جاتے ہوئے 2-3 کنویں جن میں نبی پاک نے خود اپنا لعاب دہن ڈالا، کلی مبارک کر کے ڈالی ہے، ایک نبی کے یہاں قدم کی برکت ہے اور وہاں نبی پاک کے لعاب کی برکت ہے، تو جیسے یہ شفا والا ہے ویسے وہ بھی شفا والے ہیں، اس لیے ان کو بیر شفا کہتے ہیں، اس لیے بیر روحہ کہتے ہیں، اس لیے بیر غرض کہتے ہیں۔ بولو تے صحیح نہ سجنو، یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے، بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوستو، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جلوہ گری فرماتے نا، ادھر سنیے یہ باتیں آپ کے لیے بڑی فائدے مند ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام زمزم شریف کا پانی مبارک کا ڈول مبارک لیتے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ پیش کیا، میرے کریم نے کھڑے ہو کر زمزم شریف کا پانی نوش فرمایا، کھڑے ہو کر۔ اب ادھر دیکھیے، زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، بیٹھ کر بھی آپ پی سکتے ہیں، اور باقی جتنے پانی ہیں وہ بیٹھ کر پینے ہیں، بیٹھ کر پینا سنت ہے، وہاں آپ کھڑے ہو کر نہیں پی سکتے۔ سبحان اللہ، بٹھے پہ گئے ہو، بٹھے پہ گئے ہو۔ اچھا سنیے، یہاں پر آپ کو آج کل کی تازہ میڈیکل رپورٹ بھی آپ کو بتاتے ہیں، آپ گوگل سرچ کریں، آپ سرچ کریں زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پئیں،
ये हुजूर ने फरमाया आखिर अंग्रेज सर तो करता है ना भैया, मुसलमानों के नबी ने आख्या तो विच गल ते है ना, और अगर किसी से रोका है तो क्यों रोका है, वो इस नतीजे पर पहुंची है जो हुजूर ने फरमाया उसकी असल हकीकत और वही होता है जो मेरे मुस्तफा फरमा गए हो। अब वो कहते हैं कि आम जितने पानी होते हैं ना इनके अंदर भारीपन होता है, भारीपन। जब ये बंदा खड़े होकर पीता है तो ये अपने भारीपन की बदौलत जब आपके पेट में, जज़ाकल्लाह, सीधे जाएंगे ना आपके पेट में, तो इधर देखें ये जो पानी है ये डायरेक्ट आपकी किडनी को भी अटैक कर सकता है यानी गुर्दियां, और ये जिगर के अंदर दाखिल होकर आपके खून का जो सिस्टम है, क्योंकि वो खून पैदा करता है ना, तो उसको भी ये मुतासिर कर सकता है। इसी तरह आपकी जो पित्ता है उसको भी अटैक कर सकता है, उसमें पथरी आ जाएगी, पित्ता बढ़ जाएगा, आपको सांस की बीमारी लग जाए। खड़े होकर पानी पिएंगे तो इंजी समझो जिवें तुसी कोठे तो बगैर पौड़ियां तो छलांग मारनी है, बच गया च बच गया, नहीं तो कुछ ना कुछ होना जरूर आ। बोलो ते सही ना यार, ये हुण कुछ तशरीह हुंदी जिन्होंने मैनूं अपने लफ्ज़ां च भी करनी पैंदी, पंजाबी जो बोलदा बैठा है। अच्छा दूसरी बात, जब आप ज़मज़म पिएंगे, आपने खड़े होकर पीना तो कहा वो ज़मज़म का पानी भी तो डायरेक्ट पेट में चल के गिरेगा, तो कहा गिरेगा तो सही पर इसके अंदर बाकी पानियों की तरह भारीपन नहीं है, ये रहमत वाला है, ये बरकत वाला है, ये अपने अंदर सॉफ्टनेस रखता है, ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना इजी एंड हैप्पी पानी होता है। ये जब सीधा चल के गिरता है तो इसको गुर्दे में जाना चाहिए ताकि अपनी बरकत दाखिल करके गुर्दा सिद्धा करे, इसको जिगर में जाना चाहिए ताकि हमारे खून में दाखिल होके हमारे खून को बरकत अता फरमाए, इसको हमारे पित्ते तक जाना चाहिए ताकि जो हमारा पित्ता है उसको शिफा मिल जाए। का कोई भी पानी खड़े होकर पिएंगे उसके नुकसानात हैं, ज़मज़म खड़े होकर पिए तो उसकी बरकत ही बरकत है। अब देखिए इतनी बड़ी बरकत ज़मज़म को अल्लाह ने अता फरमा दी, जज़ाकल्लाह मेरे अजीज, इतनी बड़ी बरकत अल्लाह ने अता फरमाई, तो मेरे सज्जन फिर ज़मज़म को वैसे पियो जैसे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अता फरमाया। अच्छा भाई इधर देखें, इधर देखें, आपको टोरे आले आले हो तो मैं एक गल इंज करा अल्लाह करके तुसी मदीने टुर जाओ, अरे तुहाडे अंदर ना शौक पैदा होवे ते गल करिया जे अगे हुण की सुनाऊं है। मैंने कहा जी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है और पहले आप वो सुनिए आपको लुत्फ आएगा। मेरे करीम खातमुन नबीयीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफहूमन हदीस सुना रहा हूं, फरमाया लोगों ये जो ज़मज़म का पानी है, हज़रत शाह जी आपकी तवज्जो, उलमा आपकी तवज्जो, जो ज़मज़म का पानी है फरमाया मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क करता है। हमने ये सुना है ना कि जिक्र अली जो है ये मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क करता है कि मुनाफिक कर और सुन नहीं सकता, चे मोमिन रजदा ही नहीं। ऐसा ही होता है, आप देख लो ईमान वाले का हाल क्या है। लेकिन हम वो मोमिन हैं जो अली का जिक्र ऐसी खुशी से करते हैं कि वाह अली तेरे ते भी लखा सलाम, पर तेरे जेड़े पहले तेरे तीन इमाम ने ना, अबू बकर पे भी सलाम हो गए, उमर पे भी सलाम हो गए, उस्मान पे भी सलाम हो गए। हम इस अंदाज से हजरत अली को मानते हैं। लेकिन बात कहीं दूर न चली जाए, जैसे मौला अली का जिक्र मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क करता है, मेरे नबी ने फरमाया ये ज़मज़म का पानी भी मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क करता है। ये रिवायत है। पूछा वो कैसे? फरमाया मुनाफिक ज्यादा पी नहीं सकता तो मोमिन रजदा ही नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बात समझ रहे हैं ना आप? बोलो जरा प्यार से, अल्लाह। वैसे तो दरसे कुरान है पर सारे पैसे कारी तसद्दुक ने सिटने ने, बाकी की होया होए मदीने जाओ इंशाअल्लाह। महफिल भी हो खराबे ते पैसे भी हो ही सिटे ते सुभान अल्लाह भी हो ही आखे। बोलो ना सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं आप? हाँ, इसलिए जरा तवज्जो कीजिए। आपको समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? ध्यान कीजिए मेरी जान। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ज़मज़म का पानी। अच्छा, मैंने ना हजरत शाह साहब जिस बंदे को ये रिवायत सुनाई है ना, वो बाद दे विच बह जाता कूलर कोल, कहंदा मैं अज अपने आप को चेक करके ही जावांगा। मजाक तो ही ना, वो फिर अपने आप को चेक कर दे जे। मेरे साथ कई मरतबा जब मैं ये रिवायत सुनाता हूँ ना तो हाजी फिर बैठते हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक तरीका बताऊँ ज़मज़म पीने का। जब आपने हरम शरीफ के अंदर दाखिल होना है ना, तो आपका जी चाहता है कि मैं 2-4 घंटे उठे कड्डा। फिर ज़मज़म पता कैसे पीना चाहिए? एक मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ। जाते ही एक गिलास पियो, मौज मारो, वो आप थोड़ी देर तो बाद खुद ब खुद हजम हो जाता जी। क्या बरकत है कसम खुदा दी।
थोड़ी देर तो बाद फिर उठो, मोबाइल लगेगी 15 मिनट 20 मिनट अद्धा घंटा, एक गिलास फिर पी लो, फिर मौजा, फिर जिले थोड़ा जा महसूस हो फिर पी लो। तुसी भावें 3-4 घंटे रहो इंशाअल्लाह तुहाडे मतलब वो जिवें हुंदा ना भी पेशाब की हाजत नहीं होएगी। ते जदों तुसी निकलण लगो ना उस वेले कम अज कम कदी 12वीं दे 12 गिलास पी के निकले ना। यकीन अल्लाह ते करो, तुसी अगर एक करके देखो और जदों खुल के आएगा ना यूरन ते तुहानू महसूस होएगा भी पता नहीं किहड़ियां मुसीबतां ते जनाब क्या बलावां निकल गई, ऐ हौले हो जाओगे तुसी। वहां अगर ज्यादा पिएंगे तो थोड़ी देर के बाद हो सकता है एसी भी चल रहे होते हैं तो आपको हाजत पेशाब की हो सकती है, फिर आपको हरम शरीफ से बाहर आना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि एक अंदाज के साथ पहले पीते रहे 2-4 घंटे, जितनी देर दिल करदा उठे रहो, तवाफ करो, अपना मौज मारो। और तवाफ में जैसे नमाज में वुजू शर्त है वैसे तवाफ में भी शर्त है। समझ आ रही मेरे दोस्तों को? तो ये अंदाज पानी पीने का होना चाहिए। बाकी रह गई गल अपने आप को चेक करना है। यकीन करो मैंने जब पहली मरतबा देखा था तब 12 गिलास मैं आप पी गया सी ना। ते क्या बात, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुहानू सारे नु तौफीक अता फरमा छड़े। और ये सिर्फ ज़मज़म की सिर्फ ये थोड़े बरकत है, आगे भी है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दुर्र मंसूर और दीगर कई किताबों में मौजूद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि हम ना खाना काबा में थे और मुहद्दिस हैं हजरत इमाम उयैना, बाद में कहा सुफियान बिन उयैना, ये बहुत बड़ा हदीस की दुनिया का नाम है। आप बैठे थे मक्के में खाने काबे में और आपने एक हदीस सुनाई। अदर वेखे तो मैं शौक दसा कहीं होंदा है। आपने हदीस बयान की कि ज़मज़म का पानी बंदा जिस नीयत से पीता है अल्लाह ताला उसको पूरा कर देता है, जिस नीयत से पिए। एक बंदा उठया, वो गया ज़मज़म दे कुएं ते पानी पीता ते वापस आया, कहता शेख मोहतरम जी आपने हदीस बयान की थी ज़मज़म बंदा जिस नीयत से पिए अल्लाह पूरी करता है। कहा बिल्कुल। फरमाया मैं उठ के पानी इस नीयत ना पीता कि तुसी मैनू 100 हदीसां सुनाओगे, हुण मेरी नीयत पूरी करो। तो उस मुहद्दिस ने भी ये नहीं कहा कि लबी आ केड़ी तू नीयत तू कीती है तो सुनावा मैं। उन्हें आख्या सोनिया फिर मैं तेनू हदीसां हुणे सुना छड़ना ते गल ही कोई नहीं ना। और ये याद रखिए, इस बात को बड़े बड़े उलमा ने लिखा है इस बात को, और मैं अभी डायरी में मैंने ये हवाला लिखा हुआ है। यकीन फरमाइए, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। उलमा ने लिखा हजरत इमाम आजम के पास जो इतना इल्म है पता कैसे आया? फरमाया जब ये ज़मज़म पीने लगे ना तो इनके पेश नजर ये हदीस थी कि ज़मज़म पीते वक्त जो बंदा जो नियत करे दुआ करे अल्लाह कबूल करता है। आपने दुआ की या अल्लाह मुझे आलमुल उलमा बना दे, यानी जितने उलमा है उन सबसे ज्यादा इल्म मुझे अता कर दे। फरमाया अल्लाह ने ऐसी दुआ कबूल की, ये इमाम आजम को सारे इमामों का भी इमाम बना दिया है अल्लाह तबारक। और अल्लामा ज़हबी ने एक ऐसा वाकया लिखा, उन्हें ज़मज़म की गाल टुरी है तो फिर चस लो ना यार थोड़ी जही है। अल्लामा ज़हबी ने इस बात को लिखा, वो फरमाते हैं कि हमारे साथ एक शख्स था और वो दीन के साथ बड़ा शगफ रखता था। कहा कि हम जब वहां पहुंचे चंद दिन गुजरे तो इस बेचारे को ना फालिज का अटैक हो गया। अब जब उसको फालिज का अटैक हुआ तो बड़ा जबरदस्त हुआ, बड़ा परेशान हम भी कि क्या बनेगा। उसने ना अपने खादिम को कहा कि जा ना ज़मज़म की बोतल तो किमें या कोई भांडा या डोल जड़ा वो तो लेके आया ना। वो ले आया तो वो इल्म दीन पढ़ने वाला तालिब इल्म भी था या मुहद्दिस था जो भी, उन्हें ना अपनी दबात दे ज़मज़म का पानी पाया और कलम डाल के ना तो एक आयत सूरतुल हश्र की लिखी, वला इन शिअना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहैना। ए आयत अगे तोड़ ए लिखी, लिख के ना ते ओ जड़ा बाकी डोल सी ओदे विच कागज पा के जिवें बंदा तवीज नहीं पींदा इस तरह वो पी गए। अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमा। लो जी फालिज होना गया। पहला नुक्ता ये निकला कि तवीज लिखना बड़ा पुराना तरीका है, बुजुर्गों का तरीका है, नाजायज नहीं है, जायज है और इससे शिफा भी मिलती है। और दूसरी बात, अल्लाह ने जब उनको शिफा बख्शी ना और वो पहुंचे खाना काबा का तवाफ करने के लिए, तो बेली जेड़े सन ना बाकी सारे साथी उन्होंने देखा ओए ए बंदे नु फालिज होया सी तो आप कमरे छड़ के फिर इत्थे फिरदा है। ओ पूछा अल्लाह ने तुम्हें कैसे शिफा दी? उन्हें आख्या ज़मज़म। हाय 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 हाय, अल्लाह ने ज़मज़म की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा दी है। बल्कि शिफाउल गुराम के अंदर अल्लामा फासी ने इस बात को लिखा है। हाँ, वो फरमाते हैं एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुल्ला और उसकी आंखों की बिनाई चली गई। वो जब खाने काबे में गया कहता मैनू जरा ज़मज़म दे खूह ते ले चलो ना। पहले कुएं से पानी खुद निकाला करते थे, समझ आ रही है? ये तो अब है सारा सिस्टम, वो सारा अब भरना पड़ता है, वरना पहले सब खुद भरते थे। अब किसी को शायद पता भी ना हो कि ज़मज़म दा खूह है किथे करके।
अब्दुल्ला को वहां लेके गए, उन्होंने कहा पानी का डोल निकालो, निकाला ते पानी कढ़ के ना ते इंज अपनी अखां दे विच पाउण लग पए ते नाल कहंदे ने रब्बा सोहणिया तेरे हबीब दा फरमान है कि जिहड़ी नीयत दे नाल ज़मज़म नो बंदा पीवे ते वो पूरी हुंदी है। ते मेरी नीयत ये सी कि मैनू अखां दे ते नाल ये भी मैं एक रिवायत का मफहूम पढ़िया है कि ज़मज़म के पानी को देखने से और इसके करीब आने से बंदे की आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। तो या अल्लाह मेरी नीयत के मुताबिक मैनू फिर अजर अता करना। भाई ये करने की देर थी, अल्लाह ने दोनों आंखें ही रोशन फरमा दी थी। ये ज़मज़म की कोई बरकत आम नहीं है, उलमा ने लिखा है जो बंदा ज़मज़म के ऐसे 3 चुल्लू थोड़ा जा गिलास पानी पा के अपने सिर पे पा छड़े ना, अल्लाह ताला ना दुनिया में जलील होने देता है ना हशर में जलील होने देगा। हमारे बुजुर्गों का ये तरीका रहा है, वो अपने हाथ धोते हैं ज़मज़म के साथ ना, इधर वेख्या दे कहते ने या अल्लाह मेरे हत्थां नू ज़मज़म लग गया, मेरे हत्थां ना हुण कोई कत्ल ना होवे, मेरे हत्थां ना कदी जुल्म ना होवे, मेरे हत्थां ना कदी नाप तोले च कमी ना होवे, मेरे हत्थां ना किसी दा हक ना मारिया जाए। आयो सदके जावां एनू कहंदे जे। फिर वो अपने चेहरे पर फेरते या अल्लाह ये ज़मज़म दा सदका जिवें इत्थे चेहरा नूरानी रखिया, हशर दे विच भी नूरानी रखी साडे चेहरे। ओ मेरे भाई अब ये तो दास्तान चल पड़ी है और वक्त का दामन बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं जरा ये तो इश्क दी गल है, हजे ते आप अरफात गए ही नहीं, अजे तो मीना आप बड़े ही नहीं, यकीन अल्लाह ते करो, अल्लाह दे बंदे हजे तो आप शैतान दी फेंटी लाई कोई नहीं है, यकीन अल्लाह ते करो। क्या मैं तुम्हें दास्ताने सुनाऊं? बहरल गल सुन के सवाद आया है, नियत करो यार, नियत करो कि हम हज भी करेंगे, हम उम्रा भी करेंगे और फिर जवानी में करेंगे, बुढ़ापे में नहीं करेंगे। अपने आप को आगे लेके आइए। मैं बस 2-4 मिनट आपसे और गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद चूंकि दरसे कुरान का माहौल ऐसा ही होना चाहिए, वो ना हो तुझी आखो भी पहली बार आया तो 1.5 घंटा ला गया है। जब मुझे पता है आप मोहब्बत करते हैं, अल्लाह आपको जज़ा बख्शे, लेकिन जो इतनी बड़ी तादाद है मुझे इनकी भी फिक्र रहती है ना जी। आइए जरा गुफ्तगू को समेटने की तरफ आए। बंदा जब ज़मज़म पीता है, सई करता है, मिना अरफात मुज़दलिफ़ा अपने मनासिक अदा करता है। तायराना मैंने कलाम पहले कर दिया, हुण जाना है हज ते मोर रोण वास्ते ते जाना भी मदीने है। समझ आ रही है? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन हज्जा फलम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी, फरमाया जिसने हज किया और बाद में वो मदीने मुझे मिलने नहीं आया, फरमाया वो बेवफा है। अगर किसी की फ्लाइट का शेड्यूल ऐसा हो कि वो पहले मदीने चले गए और बाद में उनको वहीं से मक्के से ही वापस आना, तो ये एक अलग मसला है। और अगर उलमा फरमाते हैं कुरान की आयत के मुताबिक ये भी ठीक है कि बंदा पहले मदीने से होके आए। क्यों? अल्लाह ने फरमाया वलवन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह फरमाता है कि महबूब अपने उम्मत से फरमा दे जब तुमसे गुनाह हो जाए ना तो सीधे मुस्तफ़ा आपके पास आ जाए, आप जब इनकी सिफारिश कर दें तो अल्लाह ताला इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। तो वो हाजी पहले हुजूर की बारगाह में जाए और जाके इकरार करे या रसूलल्लाह मैं गुनाहगार हां, मैं तुहाडे कोल आ गया, मेहरबानी करो, मेरी सिफारिश करो। तुहाडी कहण दी ढिल्ले साईयां ने तुहाडा काम वैसे ही करवा दिया। हो जा रही है? तो पहले मदीने में चले जाए तो फिर भी बंदे के पास इल्म होना चाहिए कि हुण मैं ते करना क्या है। आइए 2 हदीसें मैं और सुना के फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। तवज्जो है? थके तो नहीं है मेरे सजनों? सुनिएगा जरा। फरमाया कि जो मोहब्बत से, अब ये मफहूमन सुना रहा हूं, जो मोहब्बत से मदीने में जाता है, फरमाया ए गल हुण जिहड़ी मैं करनी, मैं दोबारा फिर रुकिया, तुहाडी ना तवज्जो सज्जे खब्बे होई है, तो मैं नहीं चाहुंदा कि तुसीं ये गल नूं भुल जाओ किस तरह। फरमाया जो प्यार मोहब्बत इश्क जो भी लफ्ज़ तुसीं यूज कर लो, फरमाया वो जब मदीने में जाता है ना शौक और तड़प के साथ, फरमाया अल्लाह के फरिश्ते रहमत के गुलदस्ते देकर उसका इस्तेकबाल फरमाते हैं। अच्छा, मेरे एक सैयद साहब दोस्त हैं, वो इस वक्त हज पे गए हुए हैं। उन्होंने ना, वो पिछले से पिछले साल मेरे हज पर थे, डॉक्टर नकीबी शाह साहब मुल्तान के, वो मुझे फरमाने लगे। मैं पूछा, मैं कि शाह जी ए जरा रिवायत है कि जब बंदा मदीने में आता है शौक और तड़प लेकर तो फरिश्ते उसका इस्तेकबाल करते, एदा पता किमें लगे? पता किमें लगे? काजी ये शारही ने लिखा है। तो मैं क्या की है? फरमाने लगे ओनू पता किमें चलदा, जूं जूं नेड़े आउंदा है ना अखां दे विचों हंजू चल पैंदे। हजूर मैं तुहाडे शहर आउंदा, बेटा गुनाहगार मेरे नसीब। और फरमाया दूसरी इसकी निशानी ये है
ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਵੜਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗੁੰਬਦ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ रहमत वाला गुलदस्ता दे के चले गए। हाय ओ मेरे अल्लाह, जिन्ने आशिक बैठे ने ना सारे नु सादत बख्श, ए तेरे घर भी देखण ते तेरे हबीब दा रोजा भी देखण जा रही है। और फिर जब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जाते हैं, उलमा ने लिखा है अगर थके हुए थोड़ी देर आराम कर लें, गुस्ल करें, फिर अच्छे कपड़े, सफेद कपड़े पहली मर्तबा पहन के जाएं तो सुभान अल्लाह, खुशबू लगाएं। और जब हुजूर की बारगाह में जाए ना, इधर देखे, फरमाया इको ही गल, हजूर तुहाडे तो वड्डा रहमत वाला कोई नहीं ते मेरे तो वड्डा गुनाहगार कोई नहीं। हजूर तुहाडे दरबार ते आ गया, निगाह फरमा दियो ना। बस जांदियां ही सलामी पे खुदा दी कसम इत्थे कुछ होवे सही, उत्थे चस आउंदी। नबी पाक को उलमा ने लिखा है ऐसे चल के सलाम करना चाहिए जैसे जिंदगी में बंदा किसी को सलाम करता है। और यकीन करो, हाय हाय हाय, वहां पर जब पहुंचते हैं ना, बहुत औखा होता है हजूर दा सामना करना। अल्लाह की कसम बड़ा औखा जी हजूर दा सामना करना। हजरत शाह नसीरुद्दीन गोल्डवी का नाम जानते हैं आप सारे हजरात। आप मदीना शरीफ में थे तो आपने ये नात लिखी थी, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, ओ अब मतलाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं। ए नात आपने ओथे लिखी सी। आपने ना उत्थे जदों नात लिखी ते एक बंदे ने पूछा भी तुसी अपने नाना जान दियां जालियां दे सामने नहीं जांदे ते पीछे पीछे लोग के फिरदे रहिंदे हो, दूरों दूरों ही सलामी ते दरूद ते जनाब क्या चक्कर है? तो पता की कहन लगे, फरमान लगे उत्थे शेर लिख छड़िया ना उन्होंने शेर लिख छड़िया। और वो शेर क्या सी? आपने फरमाया शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता। इसदा मतलब है मेरे गुनाह है ना, मैं कितना हजूर दा सामना करना। और अगला जड़ा शेर लिखिया लुत्फ ले आजे, कहते ने शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ओ ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। हाय हाय हाय। और फिर जदों हजूर दे रोज़ा पाक दा सारा मंजर वेख्या ना, तवज्जो करना, तो देखा कि नबी पाक के साथ में हजरत अबू बकर उमर है। तो आपने फिर हजरत अबू बकर दे उमर दे खिलाफ जेड़ा भी कोई गल करदा उन्होंने एक पैगाम दिता मदीने दे विचों। आपने फरमाया नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर और तू बिगड़ता है, वो रोजे में सुलाए हुए हैं। तकबीर, बोलो ना प्यार से। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे खत्म नबूवत, समर अब्बास रिजवी साहब। दोस्तान गिरामी, बस आप इस अंदाज से ओथे पता कि इधर वेख्या रे ओथे कहना हजूरा झोली खाली है भर दियो, बस अल्लाह खैर सला। कसम खुदा दी कोई शिरक नहीं, लोग तमाशे बनाए ने। अल्लाह खुद अपने हबीब नु खजाने दिते ने। और अल्लाह फरमांदा वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम, अल्लाह ते ओदा रसूल जो देवे ले लो, ओ दिंदे पैन तू मंगदा ही नहीं। समझ आई? और हजूर ने फरमाया इन्नमा नकासिम वल्लाहु युअती, फरमाया अल्लाह मुझे अता करता है, मैं तो बंडी जानना। हजूर तो बांट रहे और हम वहां पर जनाब आजकल देखा फलां से मांगना शिरक है, फलां शिरक है, पता नहीं लोगों ने शिरक नु पापड़ बना छड़िया भी बंडी जाते ने। कोई शिरक मिरक नहीं है, तो चल के मंग सही, वो जिंदा है, वो अता करते हैं। अब कोई कहे जिंदा कैसे हैं, तो मैं कह जिन्हां दी उम्मत दे विचों बंदा शहीद हो जाए, रब फरमांदा शहीद नु मुर्दा ना आखी ये जिंदा है, ते जेड़ा शहीद हो जावे रब ओनू नहीं मरण दिंदा, ते जेड़ा खुद नबी होवे। बस अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। मैं मस्जिद का माहौल देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बाहर वाला भी तैयारी तूरी टहला टूला, कोई हिम्मत मारो यार, अगले दरसे कुरान ते आइए धार शे फुल होई पई होवे यार, है क्या ख्याल है? और ये जो आपका ज़ौक़ और शौक़ है मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। उलमा ने सरपरस्ती फरमाई, कारी तसद्दुक़ साहब किबला को मुबारकबाद, आपके बरादरान वाले साहब और जितने दोस्त टीम के गाँव वाले, आप सबको मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।